Hello everyone. Good evening. Welcome to day 8 of the induction training class. I hope all are doing good. Sorry, we are organizing the class from other than our fixed schedule. Actually, time and चीजें ऐसी हैं कि we can't ignore it at this moment of time. And things are that कि इसी में हर चीज को मैनेज करना है. 2 days back, like yesterday and before that was very much difficult day and night for me. Means I can't even tell you how horrible it was. Like I was literally shivering. मतलब मेरी हालत खराब थी literally. Actually, my mother's BP and diabetes both were like totally out of control, and pulse rate was very less at that moment of time. And it was really very difficult for me to manage my emotions and all the things. And in that phase, I had to upload the voice note, and I was not able to say what I want to say. So it was very difficult. Just I can say that. Matlab, when someone of your is lying on the bed and the condition is not good, you how can I express it in words? Like it was bone chilling. I can say that. So it was very horrible day. And yesterday I was in the way to, now her condition is stable. Actually, her coughing is not going on, and pneumonia, now she got infection in chest also. Urine and stomach infection are somehow in control now, but that pneumonia thing is uh, uh, bit uh, worrying the condition. और उसकी वजह से फिर अभी actually her coughing is not going in control. Consistently she is having the cough, and her BP is also varying very frequently even after the medicines. So that was the case. And कल भी मैं वापस आर के क्लास लेने के लिए कर रहा था, बट कल तो पता नहीं क्या हो गया था. इन दिल्ली एनसीआर इट वाज रेनिंग लाइक, मतलब हेल. है ना, आप लोगों ने न्यूज़ देखा ही होगा, पढ़ा ही होगा. ठीक है, आई वाज स्टक इन ट्रैफिक, और लगभग ऑलमोस्ट 70% कार पानी में डूबी हुई थी. इट वाज लाइक दैट. और बारिश रुकने का नाम नहीं, कल रात भर कंटिन्यू द रेन वाज देयर, एंड थिंग्स वेर वेरी टफ yesterday. ठीक है, बट समहाउ नाउ टुडे वेदर इज गुड, एंड आई थॉट कि ठीक है, it will this I think by we are hoping that if the condition is stable like this, by next week Monday or Tuesday she will be back home. And while when doctor says like this, I feel so relieved mentally, but till the time she is in hospital, it is like what to do. And even now team members are also there. So in the team, whoever is working, they are completely relying on my answer. मैं जो बोलूंगा वो करेंगे. एंड उनके लिए भी फिर आप लोगों को जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि now what to say. So it's better I am in direct contact and I am telling each and everything. So this is the status currently. So I thought whether it is better कि डेली क्लास का सस्पेंस रहे, उससे अच्छा है कि लेट अस कंप्लीट इट बाय इवनिंग एंड फिनिश इट अप. एंड लेट्स आफ्टर दैट आई कैन डू माई थिंग्स पीसफुली, एंड आई विल नॉट हैव द गिल्ट कि मैंने फिर से आज क्लास मिस कर दी. यकीन कीजिएगा, जितना गिल्ट आपको होता होगा या जितना अफसोस आपको होता होगा, उससे 1000 गुना ज़्यादा अफसोस मुझे होता है. बिकॉज मेरी चीज़ें हैम्पर हो रही हैं, क्योंकि मैंने अगर आपको हायर किया है एक पर्पस के लिए किया है, और वो जितना आपकी क्लासेस मिस हो रही हैं उतना ही वो डिले हो रहा है, क्योंकि आपकी कोई ट्रेडिंग ट्रेनिंग तो मिस, आपने कोई पेड कोर्स तो ज्वाइन नहीं किया हुआ है कि उसका एक अल्टीमेटम टाइम है. अल्टीमेटली इट इज़ अ जॉब, और आपको अल्टीमेटली एक जॉब प्लेटफॉर्म पे मुझे लेके आना है. तो इफ द थिंग इज गेटिंग डिलेड, इट इज डिलेइंग मी ऑल्सो, एंड इट इज डिलेइंग माई कॉस्ट्स ऑल्सो. तो ये कहीं ना कहीं मुझे अफेक्ट कर रहा है. बट कभी कभी जिंदगी में इन ऑब्वियसली इंसान की कीमत सबसे ज़्यादा है ना. बाय बीइंग अ ह्यूमन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. तो और पेरेंट्स जब साथ में हो, तो पेरेंट्स के सिवा तो इस दुनिया में कुछ दिखता ही नहीं है ना. इट इज़ लाइक दैट. सो द फर्स्ट प्रायोरिटी इज दैट कि वंस माई मदर इज ओके एंड शी इज बैक होम, even lying on the bed, it will be quite comfortable and quite stable scene for me that now she is at home. Still the time she is in the hospital, I am mentally there. Physically I am wherever I am, but mentally I am there. So that is the very that thing. And so I tried taking. Monday was like horrible. Tuesday, yesterday, so rain was like hell, and whole night there was no light, nothing.
where the place where we live, it was like totally drained out in water. Everything, water logging. Gurgaon was totally submerged in water yesterday. So that was the reason. And again, I have to go back in the same condition back to the hospital. And again, I am every day in the night, I am staying with my mom. So this is the thing. This is the status. So या आप लोगों के बहुत सारे मैसेज आते हैं हर दिन। आप लोग क्लास नहीं, कुछ भी आप लोग चिंता नहीं करते। डायरेक्टली यू आर आस्किंग सर हाउ इज माता जी, हाउ इज मदर, लाइक दैट। इट रियली अफेक्ट्स मी दैट। ऐसा लगता है कि आप सब, मतलब मेरी माँ को भी अपनी माँ मान के यू आर ट्रीटिंग हर लाइक दैट। और आपकी माँ भी मेरे लिए मेरी माँ ही है ना। तो हमें, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में आप मेरे साथ हैं, तो आपके साथ कुछ हो या मेरे साथ कुछ हो, हम सब के लिए ये एक बराबर है। एज वी हैव टू ग्रो लाइक अ फैमिली। तो दिस इज द थिंग। तो अफसोस करने की कोई ज़रूरत कहीं किसी को नहीं है। बहुत से लोगों को अफसोस होता होगा कि हमने आर्ट क्लासेस की। अल्टीमेटली इट इज अफेक्टिंग मी एंड माय प्रोजेक्ट, है ना। आपको तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जब तक आपकी कोर्सेज चल रहे हैं, आपका स्टाइपेंड जाता रहेगा। आपकी जो भी ट्रेनिंग की स्टाइपेंड है वो जाएगी, फिर वो सैलरी, वो सारी से आज आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं। बट थिंग इज दैट आवर स्टार्टअप इज गेटिंग डिलेड, है ना। बट क्या कर सकते हैं, नथिंग कैन बी डन इन दैट। The life of a person is super important. If that person is not there, then everything is finished. It is like that. Mother and father are the most important, like next to God, na. So you can't compare it with anything. So please bear with me. बाकी जो भी चीज़ें हैं, ऑलरेडी आपको शायद सैलरी फॉर्म अपलोड हो गया है, तो वो एनी हाउ इट विल बी बाई 8 to 10 of August इट विल बी क्रेडिटेड इन योर अकाउंट, है ना। योर स्टाइपेंड ऑफ 45K डायरेक्टली इट विल गो from Traders Yoda current account. It will go to your account, and rest things, that bond soft copy, and one let my mother come back home by Monday and Tuesday. After that, we will clear this thing, that bond soft copy and that thing. We will clear it at a rapid pace. So voice is coming now. Everyone is able to hear the voice. कुछ लोग बोल रहे हैं sir voice is not coming. Voice is coming. Everyone is able to hear the voice. Yes, yes, voice is coming. आप लोग प्लीज अपने जहां जिससे भी आप सुन रहे हैं उस चीज को वो कर लीजिए, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। आपको मैंने पहले भी कहा है, फ्रॉम डे वन ऑनवर्ड्स आपको किसी चीज की चिंता करने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। आप बस सीखने पे फोकस कीजिए, स्टाइपेंड लीजिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए, और मेरी जो भी डिफिकल्टीज थोड़ी चल रही हैं उसमें बस मेरे को मेंटली एंड इमोशनली सपोर्ट कर दीजिए, डेट्स इट, है ना। एंड ये जो आज मेरे साथ है वो कल आपके साथ भी होगा, किसी के साथ भी हो सकता है। सो वी हैव टू स्टैंड फॉर ईच अदर, नॉट even we are not helping each other financially or whatever thing, but mentally or emotionally we can support each other. That's the thing. So by Monday Tuesday I think everything will be on a streamline. I'm just praying कि somehow she comes back home, है ना। उसके बाद things will be totally fine. And after that, whatever the pending, I think three things are pending: your appointment letter, second is your job bond, and third is your soft copy and hard copy disbursement, and that syllabus and each and everything, that bit correction is required, and I'm not getting time to correct it. Okay, तो जैसे ही वो भी होता है, I'm hoping by next week we will complete all these things. Hard copy नहीं, soft copy तो at least because अभी यू आर 80, आप 80 एम्प्लॉयज हैं और उधर 67 है ना, जो दूसरे तरफ से इधर आए हैं। तो टोटल 147 आर देयर। उनके अभी सारे बॉन्ड साइन वाइन सब बचे हुए हैं, तो अब आधा आपका करूं फिर उनका करूं, इससे अच्छा है सबका एक साथ करके वो करेंगे। तो आप प्लीज डोंट वरी अबाउट दिस थिंग्स, दिस फॉर्मेलिटीज, इट विल बी देन एंड दे आर टेकन केयर ऑफ। वो सारी चीजें हैं, वंस यू आर हायर्ड मीन्स हायर्ड, यू आर ऑन पेरोल मीन्स पेरोल। आपका दिन बन रहा है, चाहे क्लासेज हो रही हैं नहीं हो रही हैं, ठीक है। आपकी ट्रेनिंग बीच में हैम्पर हो रही है क्या, कुछ भी हो रही है, आपकी सैलरी या स्टाइपेंड पे उसका कोई फर्क पड़ने नहीं जा रहा है। सो बी रिलैक्स्ड, बी टेंशन फ्री, एंड जस्ट बी देयर, ठीक है। तो चलिए, बिना की अभी बाय देन टिल द टाइम बाय मंडे ट्यूसडे, बाय मंडे और ट्यूसडे द क्लासेस विल गो ऑन दिस शेड्यूल ओनली, और इसी शेड्यूल पे आई विल ट्राई टू रैप इट अप बाय 6:15, 6:20, 6:15, 6:20 लाइक दैट, ताकि मैं भी थोड़ा मोड़ा जो मेरा काम है वो निपटा के फिर मैं हॉस्पिटल के लिए निकल जाऊं। देन आई विल बी रिलैक्स्ड, कि मुझे फिर जाना, फिर आना, फिर क्लास लेना, फिर जाना ना पड़े। मैं एक ही बार में अपने घर से सारा काम निपटा के फिर मैं वापस अपने जगह के लिए जा सकता हूँ, ठीक है। अब जो भी क्वेरी है, कुछ भी है, अगर आपको लगता है उसका रिप्लाई टीम कर देगी तो टीम से पूछ लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं टीम नहीं दे पाएगी तो आप मेरे को रिकॉर्ड करके छोड़ दीजिएगा, मैं सुन के रिप्लाई कर दूंगा। एल्स वी विल टॉक इट ऑन सैटरडे एंड संडे। आज टाइम उतना भी है नहीं कि अभी बैठ के फिर फर्दर क्वेरीज डिस्कस की जाए। सो लेट्स स्टार्ट, ठीक है, चलिए। सो नाउ आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन।
एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट सम डिफरेंट सेशन। यार मेंटली बहुत मजबूत होना पड़ता है, यू हैव टू फील वेरी स्ट्रांग टू टेक द थिंग्स इन योर कंट्रोल, है ना। इवन इतनी सारी चीजें होते हुए भी अगेन टू सिट टू टीच और टू लर्न, इट नीड गट्स यार। बट लाइफ, दिस इज लाइफ, वी हैव टू डू इट, है ना। स्क्रीन इज विजिबल ना, सब लोगों को स्क्रीन दिख रही है? ओके, चलिए, आई एम क्लोजिंग द चैट बॉक्स नाउ। लेट्स स्टार्ट द क्लास एंड वी विल एंड इट बाय 6:10 और 6:15। चलिए, so today we are going to learn about the stock market basics, okay, in which we are going to discuss the strategies and mindset to become a profitable trader from day one। आज हम स्टॉक मार्केट बेसिक्स के बारे में बात करें, ठीक है। अब धीरे धीरे एक एक दिन में एक एक सेशन करते करते सारी चीजों को हमें फिर खत्म भी करना है ना। एंड लर्न, रिमेंबर दीज थिंग्स यू आर नॉट लर्निंग जस्ट फॉर डूइंग द जॉब, दिस दीज थिंग्स आर फॉर यू ओनली, ये आपके लिए हैं, ठीक है, आपकी ट्रेडिंग को अच्छा करने के लिए। तो इट्स योर फोकस शुड बी कंप्लीटली बैंग ऑन, ओके। चलिए, तो सबसे पहला सवाल आता है हमारे दिमाग में, व्हाट इज स्टॉक मार्केट? स्टॉक मार्केट है क्या? ठीक है, इस सवाल से आप कई बार गुजरे होंगे, मेनी टाइम्स यू वुड हैव गॉन थ्रू दिस क्वेश्चन, व्हाट इज स्टॉक मार्केट? ठीक है, स्टॉक मार्केट क्या है, क्या होता है यहाँ? ठीक है, स्टॉक मार्केट को हम लोग एक एक तरीके से इक्विटी मार्केट भी बोल सकते हैं, ठीक है, या कॉमन सेंस में इन होल ओवर इंडिया लाइक इट गोज, वी कैन टेल इट एज शेयर मार्केट, ओके। व्हाट हैपेंस हियर, यहाँ क्या होता है? यहाँ पे एग्रीगेशन होता है। किसका एग्रीगेशन होता है? बायर्स एंड सेलर्स ऑफ स्टॉक्स और शेयर्स, ठीक है। यहाँ पे एग्रीगेशन होता है, यहाँ पे बायर्स और सेलर्स जमा होते हैं, ठीक है, जिनके पास स्टॉक्स होते हैं या फिर शेयर्स होते हैं, और विच रिप्रेजेंट ओनरशिप क्लेम ऑन बिजनेस। मतलब यहाँ पे बायर और सेलर दोनों के पास स्टॉक्स होता है या फिर किसी कंपनी का शेयर होता है, और उस पे वो अपनी ओनरशिप दिखाते हैं, ठीक है। जैसे मैं सेलर हूं, मेरे पास रिलायंस का स्टॉक है, रिलायंस के 600 शेयर हैं मान लीजिए मेरे पास, ठीक है, और आप एक बायर हैं, ठीक है। तो नाउ करेंटली सेलर हैज द ओनरशिप, ठीक है। जब बायर उसको खरीद लेगा तो ओनरशिप उसके पास क्या होगी? ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें स्टॉक्स में सिर्फ हम स्टॉक्स के, अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें तो इसमें सिर्फ तो हम स्टॉक्स पे शेयर ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, स्टॉक्स के अलावा बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। अब ये सारी जो लेन देन होती है, सारी जो चीजें होती हैं, ठीक है, ये किसी भी कंट्री के पब्लिक स्टॉक एक्सचेंज पे, ठीक है, रजिस्टर्ड होता है ना। लाइक इन इंडिया इट इज रजिस्टर्ड इन बीएसई एंड एनएसई। प्राइवेट बेसिस पे भी ये चीजें होती हैं, आपको पता नहीं होगा, प्राइवेट भी ट्रेडिंग होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कुछ जैसे जो स्टॉक्स होते हैं, जैसे प्राइवेट कंपनीज हैं, जैसे हम मान लेते हैं हल्दीराम, हल्दीराम को ले लीजिए, हल्दीराम कहीं भी किसी भी स्टॉक ब्रोकिंग पे रजिस्टर्ड नहीं है, बट उसके भी शेयर्स हैं, ठीक है, जो वो लोकल मार्केट में उससे क्या करते हैं? क्राउड फंडिंग करते हैं, ठीक है, सच एज शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनीज विच आर सोल्ड टू इन्वेस्टर्स थ्रू इक्विटी क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। तो कोई पूछे आपसे व्हाट इज स्टॉक मार्केट, तो स्टॉक मार्केट इज द एग्रीगेशन ऑफ बायर्स एंड सेलर्स ऑफ स्टॉक्स और शेयर्स विच रिप्रेजेंट्स ओनरशिप क्लेम ऑन बिजनेस, ठीक है, बिजनेस पे क्लेम, बेसिकली बाइंग और सेलिंग करने ही आए हैं, ठीक है। स्टॉक मार्केट में आपको पता है इट इज अ जीरो सम गेम, है ना। कोई बाई करेगा तो कोई सेल करेगा, कोई सेल करेगा तभी कोई बाई करेगा, ठीक है।
इट इज लाइक दैट, इट इज अ जीरो सम गेम। यहाँ पे 1 + 1 2 नहीं होगा, यहाँ पे 1 + 1 0 होगा। ठीक है, इस तरीके से आप इस चीज को समझ सकते हैं। तो व्हाट इज स्टॉक मार्केट? स्टॉक मार्केट इज अ प्लेस वेयर पब्लिक लिस्टेड कंपनीज आर ट्रेडेड। स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पे पब्लिक लिस्टेड कंपनीज जो होते हैं वो ट्रेड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं जो कंपनी के बिहाफ पे ट्रेड करते हैं। ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी स्टॉक ब्रोकर्स फैसिलिटेट्स द ट्रेड। ठीक है, स्टॉक जो है वो खरीदा या बेचा जाता है, बाई और सेल किया जाता है। ठीक है, इफ इट इज लिस्टेड ऑन वेयर एक्सचेंज, एक्सचेंज अपने इंडिया में बीएसई, एनएसई, इस तरीके से। ठीक है, तो जो भी स्टॉक्स होंगे वो बीएसई या एनएसई पे एक्सचेंज पे लिस्टेड होंगे, वहां पे उनकी बाइंग या सेलिंग होती है। ठीक है, जैसे अपने इंडिया में आपको पता है मार्केट का जो प्री ओपन टाइम है दैट इज 9 PM टू 9:15 PM। ओपनिंग अपने इंडिया में होती है 9:15 PM। क्लोजिंग अपने इंडिया में जो इक्विटी डेरिवेटिव मार्केट है उसकी 3:30 PM। कॉमोडिटी तो चलता रहता है। ठीक है, इट इज लाइक दिस। अपने इंडिया में जो मेन स्टॉक एक्सचेंज है ये सबको पता है, किसी को कुछ इसमें एक्स्ट्रा कुछ है नहीं करने को, बीएसई एंड एनएसई। ठीक है, तो इन शॉर्ट फॉर्म हम जान सकते हैं स्टॉक मार्केट में ये सारी चीजें हमारे लिए यहाँ पे इस तरीके से ये चीजें होती हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब जो आप इसमें पढ़ने जा रहे हैं ये थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, जैसे अब सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने आता है, व्हाट इज इंडेक्स? इंडेक्स क्या है? ठीक है, व्हाट इज इंडेक्स? इंडेक्स को एक सिंपल से स्ट्रेट लाइन में अगर समझा जाए, इन जस्ट वन वर्ड इफ वी हैव टू डिस्क्राइब इंडेक्स, इट इज व्हाट? वेटेज ऑफ स्टॉक्स। स्टॉक्स के वेटेज, वेटेज को हम क्या कहेंगे? इंडेक्स कहेंगे। ठीक है, और ब्रॉड फॉर्म में इफ वी वांट टू अंडरस्टैंड इट, इसको हम क्या कह सकते हैं? इट इज द मेथड टू ट्रैक द परफॉर्मेंस ऑफ सम ग्रुप ऑफ एसेट्स इन ए स्टैंडर्ड वे, स्टैंडर्डाइज्ड वे। इंडेक्स के थ्रू ही आप ग्रुप ऑफ एसेट्स को, ग्रुप ऑफ स्टॉक्स को क्या कर सकते हैं? ट्रैक कर सकते हैं, उनके परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल S&P 500। ठीक है, S&P 500 क्या है? टॉप 500 कंपनीज ऑफ यूएसए। जैसे डाउ जोन्स है। ठीक है, डाउ जोन्स कितने इंडिसेस से मिलकर बना हुआ है? 30। उसी तरीके से निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 स्टॉक्स, ब्लू चिप स्टॉक जिसको आप बोलते हैं। तो इस तरीके से दिस इज इंडेक्स। ठीक है, अब इंडेक्स क्या करता है? व्हाट इंडेक्स डू, ध्यान से समझिएगा, एकदम अलग तरीके से हर चीज को हम लोग इसमें जानने की कोशिश कर रहे हैं, एंड एवरीथिंग इज लिंक टू ईच अदर। ठीक है, बाद में आप समझेंगे कि अरे बाप रे, ये यहाँ ये चीज यहाँ कैसे पहुंच गई, हाउ इट केम हेयर। इट विल बी लाइक कि हाउ इट वाज लाइक दिस, ये यहाँ इतने अच्छे से यहाँ इतना वो करके पहुंचा कैसे। ठीक है, तो नेक्स्ट इज हम इंडेक्स कैसे क्या कर सकते हैं? तो इंडेक्स क्या करता है? इट ट्रैक्स ए पार्टिकुलर इंडस्ट्री। इंडेक्स क्या करता है? इट ट्रैक्स ए पार्टिकुलर इंडस्ट्री और सेगमेंट, और सेगमेंट। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इंडेक्स एक पार्टिकुलर इंडस्ट्री या सेगमेंट के परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है। जैसे कि अपने इंडिया में हम इस चीज को अगर ले लें तो जैसे हो गया निफ्टी, जैसे हो गया बैंक निफ्टी, जैसे हो गया निफ्टी आईटी, जैसे हो गया निफ्टी फार्मा। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो है हमारे इंडिया में क्या है? इंडेक्स है। ठीक है, हमारे इंडिया में जो पॉपुलर इंडेक्स कौन कौन से हैं? निफ्टी 50 है, सेंसेक्स है, निफ्टी बैंक है, निफ्टी आईटी है, मिड कैप 100 है, निफ्टी नेक्स्ट 50 है, निफ्टी मेटल है। ये सारे के सारे अपने इंडिया में क्या है? दीज आर दी इंडेक्स। स्पेसिफिक सेक्टर, स्पेसिफिक ऑटो, जैसे निफ्टी ऑटो है। ठीक है, तो वो ऑटोमोबाइल सेक्टर को वो करता है।
उसके इंडेक्स को मेजर करता है। निफ्टी फार्मा है, वो फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज के स्टॉक्स को मेजर करता है। ठीक है। निफ्टी 50 है, वो इंडिया के टॉप 50 जो ब्लू चिप स्टॉक्स हैं, जिनका टर्नओवर बिलियन में है, तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में है, उसको मॉनिटर करता है। निफ्टी बैंक है, जितने भी बैंक के सारे स्टॉक्स हैं वो सारे के सारे उस इंडेक्स में मर्ज किए हुए हैं। ठीक है। निफ्टी मिड कैप है, छोटे छोटे जो जितनी भी कंपनीज हैं उनके स्टॉक्स हैं। निफ्टी आपको स्मॉल फंड है। अलग इस तरीके से सारे जो है, ये सारे अलग अलग इंडेक्स को क्या किया गया, कैटेगराइज किया गया। ठीक है। तो स्टॉक मार्केट का जो इंडिसेज है उसको बहुत सारे तरीके से क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है। स्टॉक मार्केट का जो इंडिसेज है उसको बहुत अलग तरीके से इट हैज बीन क्लासिफाइड। अब बेसिकली इसको 5 तरीके से क्लासिफाई किया गया है। ठीक है। कैसे कैसे किया गया है, ध्यान से देखिए, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। तो स्टॉक मार्केट, जैसे आप अगर स्टॉक मार्केट में हैं और आप बीइंग एज अ ट्रेडर यहाँ पर ट्रेड करते हैं। ठीक है। बीइंग एज अ ट्रेडर, इफ यू आर ट्रेडिंग हेयर, तो आपको इंडेक्स को किस तरीके से देखना है, हाउ यू हैव टू सी द इंडेक्स। तो इट विल बी कैटेगराइज्ड इन 5 वेज। नंबर 1, ग्लोबल। ठीक है। नंबर 2, रीजनल। नंबर 3, नेशनल। नंबर 4, इंडस्ट्री। नंबर 5, एक्सचेंज। इस तरीके से ये आएगा। ठीक है। दिस विल कम लाइक दिस। अब ग्लोबल, ग्लोबल मतलब क्या। ग्लोबल में आपको पता है बहुत सारे एक्सचेंज हैं, बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं। ठीक है। ग्लोबल मतलब क्या, इंक्लूड्स स्टॉक्स फ्रॉम मल्टीपल रीजन्स एंड टाइप्स ऑफ बिजनेस। ठीक है। इफ यू बीइंग एज अ ट्रेडर, आपकी नजर ग्लोबल पे भी होनी चाहिए, रीजनल पे भी होनी चाहिए, नेशनल लेवल पे भी होनी चाहिए, इंडस्ट्री स्पेसिफिक भी होनी चाहिए, और एक्सचेंज पे तो होनी ही चाहिए। अब ग्लोबल में मतलब क्या, अब जैसे रीजन्स में बटे हुए हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स आर देयर, एशिया, अफ्रीका, ठीक है, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, है ना, लाइक दैट, यूरोप, है ना, इस तरीके से, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। तो ये हो गए आपके ग्लोबल लेवल पे। ठीक है। अब फिर उसको हम लोग रीजनल में बांट देते हैं। ठीक है। रीजनल में बांट देते हैं स्पेसिफिक जोग्राफिकल, जैसे एशिया है, यूरोप है ना, साउथ ईस्ट एशिया है। तो ग्लोबल लेवल पे जो डोमिनेंट फैक्टर है दैट इज यूएस मार्केट। जो यूएस मार्केट करेगा वो पूरी दुनिया के मार्केट्स करेंगे। यूएस मार्केट गिरेंगे तो पूरी दुनिया के मार्केट आज नहीं तो कल गिरेंगे। यूएस मार्केट इज राइजिंग मींस ऑल ओवर वर्ल्ड द मार्केट इज राइजिंग। आप देखते होंगे वेन एवर द फेड पॉलिसी इज देयर, फेड मतलब क्या, जो हमारे आरबीआई की जो पॉलिसी है, जब वो हर, आपको पता है मॉनेटरी पॉलिसी आती है हमारी एवरी क्वार्टर, तो उसी तरीके से पूरी दुनिया की नज़र यूएस के नेशनल, जैसे हमारे अपने अपने इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसी तरीके से फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ यूएस है, लाइक दैट। तो वहाँ का जो आपको जो मेन है गवर्नर है, उसके स्पीच पे पूरी दुनिया की नजर रहती है कि वो क्या कह रहा है। ठीक है। अगर उसने रेट कट किया यूएस में, तो पूरे वर्ल्ड में फिर उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अगर उसने रेट इंक्रीज किया यूएस में, तो उसका पूरा इम्पैक्ट आपको पूरे वर्ल्ड लेवल के मार्केट्स में देखने को मिलेगा। तो यूएस हैज गॉट द ग्लोबल डोमिनेंस, है ना। अब उसके इम्पैक्ट के हिसाब से, जैसे क्या होता है अपने इंडिया में, जब हम मार्केट को देखते हैं तो सबसे पहले हम डाउ देखते हैं, डाउ कहाँ गया। ठीक है। डाउ का फ्यूचर्स कहाँ है, नैस्डैक कहाँ पे खुला था, कहाँ पे क्लोज हुआ था, S&P कहाँ पे खुला था, क्लोज हुआ था। ठीक है। फिर ये ग्लोबल लेवल पे हम देखते हैं। उसके बाद फिर हम रीजनल लेवल पे देखते हैं, एशिया में क्या चल रहा है। चाइना है, चाइना का जो हैंगसेंग है वो कहाँ खुल रहा है, बंद हो रहा है। जापान कहाँ पे खुल रहा है, बंद हो रहा है। ताइवान कहाँ पे खुल रहा है, बंद हो रहा है। रसिया का स्टॉक कहाँ पे खुल रहा है, बंद हो रहा है। फिर इस तरह के लेवल्स के बाद फिर हम देखते हैं क्या, जैसे सेकंड हाफ में, जैसे मार्केट फर्स्ट हाफ में तो यूएस के हिसाब से जो भी पैटर्न होता है उसको फॉलो कर रही थी। सेकंड हाफ में फिर हमारा फोकस कहाँ होता है, यूरोपियन मार्केट कैसे खुलेगा। 1 o'clock के बाद जब यूरोपियन मार्केट खुलते हैं, आपने बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप्स में या यूट्यूब में हर जगह पे सुना होगा, सेकंड हाफ में यूरोप मार्केट जैसे खुलेगा, ग्रीन में खुलता है या रेड में खुलता है, इस पर डिपेंड करेगा कि हमारा मार्केट कैसे बिहेव करेगा। ठीक है। तो जो कंट्री जितनी स्ट्रांग है, जो रीजन जितना ज्यादा स्ट्रांग है, उसके स्टॉक की जो वैल्यू है, उसके इंडिसेस की जो वैल्यू है, उसके एक्सचेंज की जो वैल्यू है, इट इज ऑल्सो वेरी वेरी
स्ट्रांग, वो उसी तरीके से फिर वहां भी ग्लोबल डोमिनेंस फिर रखता है। ठीक है, इट इज लाइक दैट। तो इफ यू आर बीइंग अ ट्रेडर, आपकी नजर इस तरीके से आनी चाहिए। सबसे पहले यू विल सी ग्लोबल लेवल, अगेन यू विल सी रीजनल लेवल, अगेन यू विल सी नेशनल लेवल, अगेन यू विल सी इंडस्ट्री स्पेसिफिक, एंड देन फिर आपकी नजर जो होगी वो कहाँ पे होगी? एक्सचेंज पे होगी। आपकी नजर कहाँ पे होगी? एक्सचेंज पे होगी। ठीक है। अब मान लीजिए ये तो ग्लोबल लेवल पे हो गया, फिर रीजनल लेवल पे आपने देखा। अब आप नेशनल लेवल पे देखेंगे। ठीक है। अब आप नेशनल लेवल पे फिर क्या देखेंगे? एनएसई को देखेंगे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को देखेंगे, निफ्टी 50 को देखेंगे। ठीक है, बैंक निफ्टी को देखेंगे, निफ्टी मिड कैप को देखेंगे, निफ्टी आईटी को देखेंगे, निफ्टी ऑटो देखेंगे, निफ्टी। आप क्योंकि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट में ताकत है कि वो पूरे के पूरे निफ्टी को उठा के यहां से वहां लेके जा सकता है। जैसे निफ्टी आईटी में इंफोसिस जिस दिन चल गया, निफ्टी अपने आप उठ जाती है। निफ्टी बैंक निफ्टी में एचडीएफसी अगर चल गया तो निफ्टी को संभाल लेता है, रिलायंस चल गया तो निफ्टी को संभाल लेता है। ठीक है, तो लाइक दिस यू विल हैव टू कीप योर आई ऑन ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, तब जाके आप सही तरीके से मार्केट की एनालाइजेशन को बहुत अच्छे तरीके से यू विल बी एबल टू डू दैट। फिर आप जाके आप यहां से फिर इसको कर पाएंगे। ठीक है। अब आप देखिए, फिर आप इंडस्ट्री स्पेसिफिक देखते हैं। इंडस्ट्री स्पेसिफिक में आप क्या देखते हैं? जैसे पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज, ऑटो इंडस्ट्रीज कैसा काम कर रही है, फार्मा इंडस्ट्रीज कैसा काम कर रही है, बैंकिंग इंडस्ट्री कैसा काम कर रही है, ठीक है, आईटी इंडस्ट्री कैसा काम कर रही है। ठीक है, अभी मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। अब बहुत से लोगों को जब अगर पता होगा तो पता होगा, नहीं पता होगा तो उन्हें लगेगा कि अच्छा इस तरीके से भी मार्केट को वी हैव टू एनालाइज। वी नेवर थॉट लाइक दिस, हमने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं था, है ना। हमने कभी इस तरीके से सोचा ही नहीं। ठीक है, यू विल फील लाइक दिस। ठीक है, आपको इस तरीके से ऐसा लगेगा। फिर एक्सचेंज, फिर हम एक्सचेंज पे जब आते हैं तो वी टॉक अबाउट वन एक्सचेंज और अदर ग्रुप ऑफ एक्सचेंजेस के बारे में हम बात करते हैं। हमारे इंडिया में अब तो सुप्रीम इज एनएसई, तो हम मोस्टली वी टॉक अबाउट एनएसई ओनली, हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा ये सारी चीजें एक साइट पे ले जाके बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, जैसे ध्यान से समझिएगा। ठीक है, एक साइट है, ध्यान से इसको लिखिएगा, मैं अभी भी इसको फॉलो करता हूँ, money.rediff.com। इसका जो लेआउट है ये मुझे बड़ा पसंद है। ठीक है, मैं आपको ये खोल के अभी दिखाता हूँ। ठीक है, इसको आप देखिए, ये रहा। ठीक है, यहाँ जाइए आप, जो मैं अभी आपको बताने की कोशिश कर रहा था उसको आप ध्यान से यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। अब आप देखिए। ठीक है, यहाँ पे यू आर सीइंग, अभी ये हमें हमारे मार्केट्स के बारे में बेसिकली आपको दिखा रहा है। ठीक है, एक मिनट, इसको आप लोग भी अपने पास अपने बुकमार्क में ऐड कर लीजिए और इसके हिसाब से इसको फॉलो कीजिएगा। ठीक है, आप यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे एक्सचेंजेस को दिखा रहा है, बीएसई एंड एनएसई। ठीक है, और नीचे इसकी सबसे अच्छी खासियत आई फील लाइक कि ये इसका सबसे अच्छा जो मतलब पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, दिस गिव्स यू सेक्टरल व्यू। ये आपको सेक्टरल व्यू बड़े अच्छे से देता है। जैसे देखिए, ये सारे सेक्टरल इंडेसेस हैं। ठीक है, पावर, एनर्जी, ऑयल गैस, मेटल, बीएससी, एचएससी, सीपीएससी, इंफ्रा, ठीक है, बैंकेक्स, ठीक है, टेक, बीएस, सारे आपको ये पूरा ऑटो इंडस्ट्री है, बीएसईसीजी, रियलिटी, जो भी है ये सब आपको अच्छे से दिखा रहा है। ठीक है, इसकी और भी खासियतें हैं, आगे जाके मैं आपको इस साइट पे बहुत डिटेल में फिर फर्दर लेके जाऊंगा। अब इन्होंने बहुत सारा इसमें अपना वो सब पेड लेके आ चुके हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पे कंटिन्यूअसली टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स दिखाएगा। ठीक है, आप बोलेंगे इसमें नया क्या है, बहुत सारी साइट दिखाती हैं। ठीक है, बट जो ये दिखाता है वो मतलब इट इज गुड। ठीक है, अभी आप गेनर्स देख रहे हैं, डेली बेसिस पे आप यहाँ से गेनर्स देख रहे हैं, टॉप गेनर्स ये आपके लिए शॉर्टलिस्ट कर लेगा। उसी तरीके से फिर फर्दर आप चाहें तो जाके अब इसके लूजर्स फिर यहाँ से आप देख सकते हैं, लूजर्स कैसे हैं। ठीक है, ये आपको फिर यहाँ से ये लूजर्स दिखाएगा। फिर आप इंडिसेस पे चले जाइए। ठीक है, ये आपको फिर पर्टिकुलर पर्टिकुलर फिर आप
अलग अलग फॉर्म में सारे जितने भी इंडिसेज हैं, जितने भी सेक्टर्स हैं, उनका स्पेसिफिक आउटले देख सकते हैं। अब आप जैसे ऑटो पे चले जाएंगे, ठीक है, ये बीएसई का आउटले दिखा रहा है। एक मिनट, ठीक है। फिर आप इस तरीके से जो ग्लोबल इंडिकेटर्स हैं जो मैं आपको दिखा रहा था, ठीक है, वर्ल्ड मार्केट के हिसाब से, अब आप देखिए एशिया में इसकी सबसे अच्छी खासियत यही है, ठीक है। अलग अलग जो एशिया के इंडेक्स हैं, ठीक है, हैंगसेंग है, निकेई है, संघाई है। अमेरिका में जो टॉप इंडेक्स है, नैस्डैक है, एसएनपी है, डाउ जोन्स है। यूरोप में जो इंडेक्स है, तो ये अलग अलग सेक्टोरियल लुक देता है, जो मतलब आपको एक ब्रॉड व्यू देखने में बड़े अच्छे तरीके से इट विल हेल्प यू। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से फिर फर्दर ये आपको हेल्प करता है, ठीक है। अब आप यहां से देख सकते हैं फिर कि निफ्टी 50, निफ्टी आईटी, आप देखिए एनएसई के कितने इंडिसेज हैं। निफ्टी 50 है, निफ्टी आईटी है, निफ्टी नेक्स्ट, निफ्टी बैंक है, निफ्टी 500, निफ्टी 100, निफ्टी मिड कैप, निफ्टी रियल्टी, निफ्टी इंफ्रा, निफ्टी विक्स, निफ्टी एनर्जी। इस तरीके से आप देख लीजिए निफ्टी के कितने कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, ठीक है। और इस तरीके से ये फर्दर आपको फिर फर्दर काम करता हुआ दिखाई देगा। अभी हम इस साइट के पे बार बार लौटेंगे क्योंकि हमारी सारी स्टडी इसी साइट के बेसिस पे होगी। तो आप इससे अपने आप को थोड़ा फैमिलियर कीजिएगा, है ना। एक दिन तो, एक क्लास तो हम लोग पूरा इस साइट की डिटेल्ड एनालिसिस एंड स्टडी पे बिताएंगे। ये साइट आपको हर चीज मॉनिटर करने में बड़े अच्छे से हेल्प करेगा। इट विल हेल्प यू इन मॉनिटरिंग ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी गुड मैनर। ये आपको बड़े अच्छे से, इट विल गिव यू अ ब्रॉड prospect broad things and it will help you really very well। बहुत अच्छे से ये फर्दर आपको हेल्प करेगा। हम इस साइट पे फिर कल भी लौटेंगे जब हम मार्केट ब्रेड्थ के बारे में बहुत अच्छे से बात कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये साइट अब आपके लिए, दिस इज गोइंग टू बी अ बाइबल। ये आपके लिए एक तरीके से आपका बाइबल है। इस चीज को, इसको बुकमार्क करके अपने पास रख लीजिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज स्टॉक एक्सचेंज। व्हाट इज स्टॉक एक्सचेंज? स्टॉक एक्सचेंज क्या है भाई? ठीक है, व्हाट इज स्टॉक एक्सचेंज? आपसे कोई पूछता है बताओ स्टॉक एक्सचेंज क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? स्टॉक एक्सचेंज इज अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है, जो दो फॉर्म में हो सकते हैं, आइदर इनकॉर्पोरेटेड और अदरवाइज, ठीक है, विच इज फॉर्म्ड फॉर द पर्पस। स्टॉक एक्सचेंज क्या है? इट इज अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल विच इज इनकॉर्पोरेटेड और अदरवाइज, कुछ पर्पस, जिसका पर्पस क्या है? नंबर वन असिस्टिंग, नंबर टू रेगुलेटिंग, नंबर थ्री कंट्रोलिंग द बिजनेस ऑफ बाइंग, सेलिंग और डीलिंग इन सिक्योरिटीज और स्टॉक्स, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज क्या है? इट इज अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल विच इज इनकॉर्पोरेटेड और अदरवाइज, which purpose is to assist, to regulate, to control the business of buying, selling और dealing ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ स्टॉक। जैसे अभी आपको कुछ दिनों से जब भी आप न्यूज खोल रहे होंगे तो आपको सेबी के आर्टिकल, सेबी 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 हर जगह से बस सेबी 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 सुनाई दे रहा होगा। सेबी ने आज ये आर्टिकल निकाला, सेबी ने ये कंसल्टेशन पेपर निकाला, स्टॉक मार्केट में 60,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है जो लोग ट्रेड करते हैं, लाइक दैट मेनी मेनी थिंग्स यू विल बी लिसनिंग, ठीक है। तो एक तरीके से आप देखो, हमारे इंडिया में गवर्नमेंट को मतलब कमेंट नहीं कर रहा हूँ, बट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है, एक चीज को सोचिएगा। मैं पॉलिटिकली बिल्कुल वो नहीं हूँ, मेरे को पॉलिटिकली मोटिवेट होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस अपनी कंट्री कंट्री की इकोनॉमी को बीइंग एज अ ट्रेडर जब रीड करता हूँ तो मुझे एक चीज दिखती है, जो करंट गवर्नमेंट है, ठीक है, प्रेजेंटली, पहले गवर्नमेंट को अगर कोई इकोनॉमिकल टोन में कुछ बोलता था वो एक अलग बात है। जब से टैक्स बजट आया है इस बार का, जो गवर्नमेंट को इतना पसंद करते थे वो भी गवर्नमेंट को दे आर लाइक अब्यूजिंग, है ना, कि व्हाट वी आर डूइंग। बड़े टैक्स के मेमेज चल रहे हैं कि भाई 3 महीने, साल के 3 महीने तो हम सरकार के लिए कमाते हैं, बाकी जो तनख्वाह आती है उसमें से एक निडल भी खरीदने जाते हैं, है ना, तो उस पे भी हमको जीएसटी, सीजीएसटी, पता नहीं क्या क्या भरना होता है, ठीक है। तो हम सब लोग मिलके बस इस देश को टैक्स ही दे रहे हैं। हमें रिटर्न में क्या मिल रहा है? बस लाइन के धक्के खाने को मिलते हैं। बैंक जाओ लाइन में लगो, एयरपोर्ट जाओ लाइन में लगो, ट्रेन के स्टेशन पे जाओ लाइन में लगो,
ठीक है, गैस का कनेक्शन लेने जाओ, लाइन में लोगों, एवरीवेयर वी हैव टू स्टैंड इन द लाइन, व्हाट आर द बेनिफिट्स वी आर गेटिंग पेइंग द टैक्स। ठीक है, एक टाइम था आफ्टर इंडिपेंडेंस टिल 2010 2015 जब नेशनल पब्लिक आपसे सवाल नहीं पूछती थी, बट नाउ पीपल आर लिटरेट, पीपल आर गेटिंग टू नो द इंफॉर्मेशन। आखिर वर्ल्ड में यूरोप की एक कंट्री है, यू विल बी नोइंग इट, लक्समबर्ग, कभी पढ़ना आप उसके बारे में। लक्समबर्ग इज द कंट्री विच हैज, वर्ल्ड की इकलौती ऐसी कंट्री है जिसने अपने यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री किया हुआ है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज फ्री। आप बोलेंगे सर पॉपुलेशन बहुत कम है, तो वहाँ किया हुआ है। ठीक है, मैंने मान लिया कि इंडिया में जितना यूपी का पॉपुलेशन होगा, जितना यूपी के गाजियाबाद का जितना पॉपुलेशन होगा, वो पूरी कंट्री का पॉपुलेशन है, मैं वो भी मान लेता हूँ। बट इकोनॉमी इज वर्किंग लाइक दैट देयर, काम तो कर रही है ना। ठीक है, हम ठीक है, हम वी आर 140 बिलियन पीपल, हम 140 करोड़ लोग हैं, है ना, ए 140 प्लस बिलियन, गलत बोल दिया, 140 प्लस करोड़ जो हैं, वी आर द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। हमारा जो स्पेस है वो हमें एकोमोडेट करने के लिए उतना नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स हैं। बट आप ये सोचिए, वी आर पेइंग ह्यूज टैक्स, हमें उसके कंपैरिजन में क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है? हेल्थ इंश्योरेंस, बीमार होते हैं उसके लिए गवर्नमेंट टेल्स अस टू डू हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस आप खुद कराते हो। बच्चों के एडुकेशन हम खुद भरते हैं। ठीक है, जितनी भी बेसिक नेसेसिटीज, आप यूरोप चले जाइए, आप साउथ अमेरिका चले जाइए, आप नॉर्थ अमेरिका चले जाइए, अरे साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका छोड़ दीजिए, अपने पड़ोस में चले जाइए, आप फिलीपींस, चाइना, थाईलैंड, ठीक है, आप साउथ कोरिया चले जाइए, आप जापान चले जाइए, आप ऑस्ट्रेलिया चले जाइए, बेसिक नेसेसिटीज ऑफ जो लाइफ है, एडुकेशन, क्लास प्री स्कूल टू क्लास 12 एब्सोल्युटली फ्री, हेल्थ एब्सोल्युटली फ्री, जब बहुत ज्यादा, हेल्थ कार्ड्स आर देयर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट टोटल कन्वीनियंस, ठीक है, एनवायरमेंट टोटली क्लीन, टोटली टोटली पीसफुल, मतलब हमसे आधे आधे पॉपुलेशन वाली कंट्री, जिनका इतना बड़ा एरिया है, इतना बड़ा क्षेत्रफल है, इतनी सारी चीजें हैं, वे दे आर स्ट्राइविंग एंड व्हाट वी आर डूइंग। ठीक है, तो सवाल तो लोग पूछेंगे ही। ठीक है, एक टाइम था जब हम इकोनॉमिक के बारे में अपने देश की सरकार से जब पूछते थे, तो वी गेट द आंसर दैट स्टॉक मार्केट भाग रहा है ना, स्टॉक मार्केट इज द रियल मिरर ऑफ द इकोनॉमी, देखो सब कुछ ठीक है इकोनॉमी में। नाउ इफ यू विल रीड द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, आज वही गवर्नमेंट हमें ये बोल रही है कि स्टॉक मार्केट इज गेटिंग अनरेगुलेटेड। ठीक है, यहाँ पे लोग अपना किडनी, घर द्वार सब बेच के ट्रेड करने के लिए आ रहे हैं, एंड दिस इज गोइंग टू स्लीप, अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो ये स्लीप ऑफ हो जाएगा और पूरे देश में हाहाकार मच जाएगा। ठीक है, तो हम अभी भी कास्ट, रिलीजन, ठीक है, यू आर फ्रॉम तमिलनाडु, यू आर फ्रॉम केरला, यू आर फ्रॉम दिल्ली, यू आर फ्रॉम उत्तर प्रदेश, हम अभी इसी में फंसे रह गए, हम आगे निकल ही नहीं पा रहे। आप बाहर निकलो, आप दुनिया को देखो, यू विल एनालाइज कितनी जबरदस्त तरीके से चीजें बढ़ रही हैं। ठीक है, एटलीस्ट यार जो बेसिक फैसिलिटीज ऑफ लाइफ है, जो बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है, पूरे 140 करोड़ लोगों को, आप यकीन करोगे, 140 करोड़ लोग पीपल्स आर देयर, जिसमें से 80% तो टैक्स देने लायक है ही नहीं। 20% जो लोग टैक्स देते हैं उसमें से भी ओनली 2 to 3 करोड़ पीपल आर पेइंग टैक्सेज, और उन्हीं के टैक्स से ये पूरा देश चल रहा है। एंड दैट 2 to 3 करोड़ आर फ्रॉम वेयर? सर्विस इंडस्ट्री, सैलरीड लोग जो, आपको पता होना चाहिए हमारे कंट्री में वी हैव बिगेस्ट सेक्टर इज सर्विस सेक्टर, सर्विस इंडस्ट्री हमारे यहाँ सबसे बड़ी है, मैक्सिमम टैक्स वहीं से आता है। ठीक है, इंडस्ट्री से, आईटी पार्क से, ये सारी चीजों से, वहां उनको छोड़ दीजिए, तो ये दो ढाई, हम जैसे 2 ढाई 3 करोड़ लोग क्या कर रहे हैं? टैक्स दे रहे हैं। ठीक है, अब ट्रेडिंग पे भी नजर आ गई सरकार की, अच्छा सब लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, एवरीवन इज ट्रेडिंग, चलो इस पे भी टैक्स लगाओ, जहां जहां से लोगों का पैसा काटा जा सकता है काटो, जीने मत दो किसी को, इट इज लाइक दैट। हमें भी आदत हो गई है, चलो यार क्या करना है, अब देश छोड़ के, हम इतने अमीर तो है नहीं कि देश छोड़ के चले जाएं, तो वी विल हैव टू लिव जो जैसे है, वी आर ट्राइंग टू एडजस्ट अकॉर्डिंगली एंड लिविंग आवर लाइफ, तो इस तरीके से। ठीक है, तो अल्टीमेटली मेरे कहने का मतलब यही है, इन शॉर्ट फॉर्म, इन कमिंग ईयर्स लाइफ इज गोइंग टू बी वेरी टफ। ठीक है, मतलब चीजें वैसी नहीं रहेंगी जो आज से 15-20 ईयर्स पहले होती थी, कंपटीशन इज इमेंस, कट थ्रोट कंपटीशन इज देयर इन एवरी फील्ड। ठीक है, एंड
लाइफ इज गोइंग टू बी वेरी टफ इन कमिंग ईयर्स, तो हमें उस तरीके से वी हैव टू मेंटली प्रिपेयर आवर सेल्फ। अभी हमारे पास टाइम है, वी हैव एवरीथिंग, वी हैव रिसोर्सेज, वी हैव ईच एंड एवरीथिंग, सो वी शुड फोकस टू ग्रो आवर सेल्फ, टू स्ट्राइव आवर सेल्फ इन द बेस्ट मैनर्स पॉसिबल। जितना हो सकता है हमें उसको करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, तो पहले आप ट्राई टू मेक योर सेल्फ स्टैंड ऑन योर लेग्स, पहले अपने आप को खड़ा कीजिए, फिर दुनिया के बारे में सोचिएगा। इट इज लाइक दैट, है ना। तो अब आप देखिए, ऐसे छोटी छोटी डिस्कशंस कभी कभी चलती रहेंगी। मैं बहुत सोचता हूँ, बीइंग अ ट्रेडर मेरी नज़र हर जगह होती है, मैं हर चीज़ को पढ़ता हूँ, हर तरीके से सोचने की कोशिश करता हूँ, बस थोड़ा सा भी मेंटली डिस्टर्ब्ड हूँ, वरना मैं आपको बहुत सारी चीज़ें एंड एस्पेक्ट्स दिखाता कि हाँ आपको इस तरीके से भी ऐसे सोचना चाहिए, है ना। इन तरीकों को सोच के भी चीज़ें आपके लिए इस तरीके से काम कर सकती हैं। धीरे धीरे वी विल गेट टू लर्न मेनी थिंग्स, है ना, बहुत सारी चीज़ों पे हमारी नज़र रहेगी। अल्टीमेटली मैं चाहता हूं कि मेरी जो एक्यूरेसी है, जो मैं 88 85 80 90% एक्यूरेसी मेंटेन कर पा रहा हूं बाय गॉड्स ग्रेस, अल्टीमेटली आप भी वहां तक पहुंच जाएं। ठीक है, देखो ट्रेडिंग चलती रहेगी, ठीक है, सेबी का कंसल्टेशन पेपर आता रहेगा। ठीक है, आज क्वांटिटी पहले 75 क्वांटिटी थी, फिर घटा के 50 किया, फिर 15 ले आया बैंक निफ्टी में, फिर इसको बढ़ा के अब सुन रहा हूँ 75 करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये चलता रहेगा। ठीक है, जीरो मार्जिन चलो दे दिया, अच्छा है, अपफ्रंट पेमेंट ले लेगा, चलो वो सब चलता रहेगा। ट्रेडिंग विल ऑलवेज गो ऑन इन सम मेथड। ट्रेडिंग से पूरी आप तो, थोड़ी ना पूरे रिटेलर्स को यहाँ ट्रेडिंग से बैन कर दोगे, इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, ये हो ही नहीं सकता। देन मार्केट विल बिकम शैलो, इकोनॉमी विल बिकम शैलो, ये हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है, इकोनॉमिकली ये पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, तो थिंग्स विल गो ऑन, करेक्शंस विल गो ऑन, हमारा काम, हमारा फोकस हमारे लर्निंग एटीट्यूड को, लर्निंग को ग्रो करने पे होना चाहिए, कि हम जल्दी जल्दी अच्छे से सीख के ग्रो करके यहाँ पैसा कमाना शुरू करें और चीजों को अपने लिए अच्छा अच्छा करें। ठीक है, इट शुड बी लाइक दैट। ठीक है, तो स्टॉक एक्सचेंज मैंने आपको बताया, इट इज अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स विच इज इनकॉर्पोरेटेड अदरवाइज। ठीक है, जिसका काम होता है, उस पर्पस इज टू असिस्ट, रेगुलेट, कंट्रोल द बिजनेस ऑफ बाइंग, सेलिंग, डीलिंग इन सिक्योरिटीज और स्टॉक्स। अब अपने इंडिया में ये काम कौन करती है? अपने इंडिया में दिस वर्क इज डन बाय हुम? अपने इंडिया में ये काम कौन करती है? अपने इंडिया में ये काम करती है सेबी। आवर इंडियाज मार्केट रेगुलेटर इज सेबी। सेबी है अपने इंडिया की रेगुलेटर। आपको कुछ पता हो ना हो, ठीक है, जैसे अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्रियम्बल है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्रियम्बल है ना, हमारे देश की जो संविधान है। आप स्टार्टिंग में जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की किताब खरीदेंगे तो वहां पे एक प्रियम्बल लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आई बीइंग द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, लाइक दैट। तो वैसे ही बीइंग अ ट्रेडर, जब तक आप इंडिया में हैं, जब तक आप बाहर शिफ्ट नहीं हो रहे हैं या देश छोड़ के नहीं जा रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, उस केस में तो आप इस देखेंगे इस देश में क्या हुआ है। जो लोग कैपेबल हैं वो देश छोड़ के जा रहे हैं, दूसरे देशों में बस रहे हैं। जो लोग देश छोड़ के नहीं जाना चाहते, उन्होंने कंट्री के अंदर अपनी कंट्री बसा रखी है। बताऊं कैसे? जैसे देखिए, मैं सिंपल जहां रहता हूं मैं वहीं की बात बताता हूँ, दिल्ली है। ठीक है, दिल्ली में आप चले जाइए कीर्ति नगर से लेके करोल बाग के एरिया में, वहां दो दुनिया दिखेगी आपको। एक दिखेगा डीएलएफ और एक दिखेगा मिडिल क्लास की दुनिया। इन्होंने अपनी दुनिया अलग ही बसा रखी है, हाई राइज बिल्डिंग्स, ओन पावर बैकअप, ठीक है, ओन प्ले एरिया, ओन ओन गोल्फ, ओन वाटर सैनिटाइजेशन, ओन इलेक्ट्रिक बैकअप, ओन एवरीथिंग, वट एवर द फैसिलिटीज दैट कैन बी इमेजिन्ड, दे हैव गॉट ऑल। ये इन्होंने देश के अंदर अपना एक देश बसा लिया है, इन्हें बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इनके यहाँ के जो बिल्डिंग्स बने हुए हैं वो ग्राउंड लेवल से कम थ्री 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 फ्लोर हाई, 4 फ्लोर हाई तो उनकी फाउंडेशन स्टार्ट हो रही है। और एक हम है जो मिडिल क्लास है। हम क्या है? हमें बीइंग इस देश में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते करते कोचिंग सेंटर के अंदर बेसमेंट में पानी आता है, पानी गया, हम डूब जाते हैं, हम मर जाते हैं। ठीक है, हमारा कोई माँ बाप नहीं है, हमें कोई सुनने वाला भी नहीं है। ठीक है, नो वन इज देयर टू हियर अस, नो वन इज देयर टू टेक केयर ऑफ अस। ठीक है, रोड पे चारों तरफ हल्की सी बारिश हो जाए, नो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, बस पानी ही पानी, एनीवेयर पानी ही पानी। ठीक है, हमें ट्रैफिक देखना है। ठीक है, अब क्या बोलूं मैं। ठीक है, तो
तीन तरीके के लोग अपने देश में अब रह रहे हैं। एक तो जो देश छोड़ के चले जा रहे हैं, जो मिलियनर्स हैं, वो जा रहे हैं, जो जो मिलियनर बनता जा रहा है वो देश छोड़ छोड़ के जाता जा रहा है। ठीक है। दूसरा है जो अपने ही देश में अपने लिए एक अलग दुनिया बना के बैठ गए हैं, जिनको कोई लेना देना है ही नहीं। ठीक है, वो कैपेबल है, उन्होंने बना लिया है, जिस भी पर्पज से बनाया, जैसे भी बनाया। और हम और आप इसमें बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो हमारी लड़ाई हमारे लिए है। इट इज आवर फाइट कि हमें यहां से निकल के जो ये दुनिया बनाई गई है, या तो इसमें पहुंचना है, या हमारे लिए हमें अपनी एक अलग दुनिया बनानी है। ठीक है, वी हैव टू क्रिएट आवर ओन वर्ल्ड, और ये आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, एल्स इस देश में 140 करोड़ लोग रहते हैं, 140, और इस पे इतने जीरो, इतने लोग रहते हैं, 140 करोड़ लोग, 140 करोड़ पीपल आर देयर इन दिस कंट्री। ठीक है, तो इसके हिसाब से अपने आप को सोच लीजिए। ठीक है, सोचा करो भाई, जिंदगी कट रही है, मत काटो, सोचो, थिंक। सोचोगे तभी उसको बदलने की हिम्मत आएगी। ठीक है, सो ट्राई टू थिंक अबाउट इट। ठीक है, तो अपने इंडिया में सेबी है, जैसे हमें बीइंग अ कॉन्स्टिट्यूशन, वी आर इंडियन सिटीजन, तो हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पता है। उसी तरीके से बीइंग एज अ ट्रेडर हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पता होना चाहिए। तो सेबी कहता है टू प्रोटेक्ट, याद है मेरे को एकदम, ये तो मैं इतना इतना गंदा फंसा हूं कुछ महीने पहले इसके चक्कर में कि मुझे ये पूरा अब अच्छे से याद ही हो गया। टू प्रोटेस्ट द इंटरेस्ट्स ऑफ इन्वेस्टर्स इन, आप भी कहीं पे लिख के इसको रख लीजिएगा, सिक्योरिटीज, एंड टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ, एंड टू रेगुलेट द सिक्योरिटीज मार्केट। इनके भी, इनके लैंग्वेज भी वो वकीलों की तरह होते हैं ना, हाई कोर्ट की तरह, सुप्रीम कोर्ट की तरह। एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विथ और इंसिडेंटल देयर टू। ठीक है, आसान भाषा में, थ्री इडियट्स की तरह कहना क्या चाहते हो, आसान भाषा में कहना यही चाहता हूँ, सेबी का काम है हमारे देश में जो स्टॉक मार्केट का काम है, बाइंग सेलिंग, रेगुलेशन, ऑथोरिटी, फ्रॉड, डिफ्रॉड, जो भी सारी चीजें हैं, वो उसको रेगुलेट करना, उसको कंट्रोल करना। ठीक है, तो जैसे जैसे मार्केट बड़ा होता जा रहा है, वैसे वैसे इसका रोल जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो हमारे देश में अगर फाइनेंशियल सिस्टम को देखा जाए, बीइंग अ ट्रेडर, आप फाइनेंस से रिलेटेड हैं, तो बीइंग अ ट्रेडर आपको, अगर हम अपने फाइनेंशियल सिस्टम को देखें, तो सबसे पहले इस देश में क्या आता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है। वहां से फिर रेगुलेटरी ऑथोरिटीज हैं, नंबर वन है आरबीआई, नंबर टू है, उसके नीचे फिर सेबी है, नाबार्ड है। ठीक है, एसबीआई डाल दीजिए, बैंक है लेकिन एसबीआई इज अ पैरेलल आरबीआई, एक तरीके से आप कह सकते हैं। ठीक है, सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, ये इंडिया के स्टॉक मार्केट को देखती है। नाबार्ड इंडिया के एग्रीकल्चरल सेक्टर को देखता है। एसबीआई इंडिया का एक तरीके से बैंकिंग सिस्टम, जो एसबीआई करेगा वो अलग सारे बैंक्स करेंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, एसबीआई के एम्प्लॉयज अपने आप को आरबीआई के एम्प्लॉय से कम नहीं समझते हैं। ठीक है, ये मैंने बहुत देखा है। ठीक, तो इट इज लाइक दैट। तो फाइनेंस सिस्टम जो है अपने इंडिया में इस तरीके से चलता है। ठीक है, अब हम जब बात कर रहे हैं, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट, तो हमें अब देखना पड़ेगा, ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग, हम इंडिया में रहते हैं, तो ऑब्वियसली वी विल टॉक अबाउट द इंडिसेज इन इंडिया विच वी हैव टू फोकस। ठीक है, तो जैसे अब आगे जाके मैं आपको और डिटेल में ये बताऊंगा, बीइंग अ ट्रेडर, फर्स्ट ऑफ ऑल वेन एवर यू वेक अप, दो चीजें हैं, एक तो स्लीपिंग और दूसरा वेकअप। ये एक ट्रेडर की जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट शेड्यूल है। सोने से पहले एटलीस्ट आपको 1 to 2 आवर्स चार्ट स्टडी करनी है। ठीक है, अब चार्ट स्टडी किसकी किसकी करेंगे, इट डिपेंड्स। अगर आप इंडेक्स में ट्रेड करते हैं, तो इंडेक्स में आप निफ्टी का चार्ट देखेंगे, बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे, निफ्टी मिड कैप का चार्ट देखेंगे, ठीक है, निफ्टी आईटी का चार्ट देखेंगे, ठीक है, फिन निफ्टी का चार्ट देखेंगे। इस तरीके से आप चार्ट्स देखेंगे।
आगे मैं आपको फिर बताऊंगा। अब निफ्टी में आप किस किस का चार्ट देखेंगे, निफ्टी में बड़े बड़े जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, मतलब वेटेज है, देयर इज वेटेज। जैसे बैंक में, बैंक निफ्टी में अगर मैं बात करूं, बैंक्स का स्टॉक है, आपको पता है सारे बैंक्स इसी के अंदर लिस्टेड है, बट हेवी वेटेड किसके पास है? अगर मैं बात करूं बैंक निफ्टी 100% है, तो इसमें सबसे ज्यादा वेटेज किसका है? नंबर वन इज HDFC, नंबर टू ICICI, नंबर थ्री एक्सिस, नंबर फोर कोटेक, नंबर फाइव, सीक्वेंस में ऊपर नीचे हो सकता है, ये मैं जब पढ़ाऊंगा तो डिटेल में आएगा, SBI। ठीक है, इस तरीके से उसके बाद फिर नीचे नीचे तो आप देखेंगे अगर HDFC में 50 पॉइंट का मूवमेंट हो गया तो बैंक निफ्टी में कम से कम 500 पॉइंट का मूवमेंट है। वाई? क्योंकि वेटेज सबसे ज्यादा है। आपको पता होगा आरबीआई ने इंडिया के 3 बैंक्स को नॉट टू फेल डिक्लेयर किया हुआ है। अगर ये फेल हो गए तो इंडियन इकोनॉमिकल सिस्टम फेल कर जाएगा। नंबर वन इज HDFC, नंबर टू इज ICICI, नंबर थ्री इज SBI। ये 3 बैंक में से कोई भी बैंक अगर फेल हो गया तो इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम विल कोलैप्स। अब हम इंडियन इकोनॉमी तो पढ़ने यहाँ बैठे नहीं है, तो ये चीजें करनी है। फिर स्टॉक स्पेसिफिक आपको उनके वेटेज के हिसाब से उनके प्रॉपर स्टॉक्स के चार्ट देखने। मुझे अगर बैंक निफ्टी में बहुत इंटरेस्ट है, तो बैंक निफ्टी के जो हेवी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो मैं आपको नेक्स्ट क्लासेस में सारे स्टॉक्स के वेटेज बताऊंगा, उसके हिसाब से आपको उसका चार्ट देखना है। ठीक है, सुबह आप उठें 7 o'clock, देख लीजिए रात में डाउ जोन्स ने कैसे काम किया, नैस्डैक ने कैसे काम किया, S&P ने कैसे काम किया, साइट मैंने बताई दी है, आप वहां पे जाके चार्ट भी उनका देख सकते हैं। गिफ्ट निफ्टी ने कैसे काम किया, गिफ्ट निफ्टी जैसे खुलेगा अपना मार्केट भी वैसे ही रिएक्ट करता है। ठीक है, ये बेसिक काम आपको हर दिन एज बीइंग अ ट्रेडर, जब तक आप एक प्रो ट्रेडर नहीं बन जाते हैं, चाहे आप प्रो ट्रेडर बने या चाहे कुछ भी करें, आपको ये काम तो करना ही पड़ेगा। दिस तो यू विल हैव टू डू एट एनी कॉस्ट, बिना इसको किए आपका काम चलेगा ही नहीं। ठीक है, तो बीइंग अ इंडियन ट्रेडर, मैं अगर इंडिया में ट्रेड करता हूं, तो बीइंग अ इंडियन ट्रेडर मेरे लिए जो फोकस की चीजें हैं, अगर मैं बोलूं तो इंडेक्स टू फोकस ऑन, मुझे कौन कौन से इंडेक्स पे फोकस करना है? नंबर वन इज Nifty 50। ठीक है, नंबर वन जो है, द इंडेक्स विच यू हैव टू फोकस ऑन इज Nifty 50। नंबर टू इज बैंक निफ्टी। ठीक है, तो बेसिकली हम इन दो इंडेक्स पे सबसे ज्यादा फोकस रखेंगे, क्योंकि मैक्सिमम ट्रेड्स हम यही एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, अब जैसे अगर हम Nifty 50 में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो Nifty 50 क्या है? Nifty 50 क्या है? व्हाट इज Nifty 50? Nifty 50 इज द बेंचमार्क index. It is a benchmark index which showcase the 50 equity stocks traded in the stock exchange, in the stock exchange। Nifty 50 के 50 इक्विटी स्टॉक्स हैं, एक तरीके से 50 ब्लू चिप कंपनी ही बोल लीजिए आप, है ना। वो वैरी करता रहता है हर महीने जो है, 5-6 जो टॉप 10 है वो फिक्स रहते हैं, बाकी दे आर वेरिंग। ठीक है, तो Nifty 50 में 50 इक्विटी स्टॉक्स आर ट्रेडेड इन द स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, Nifty 50 जो है वो 12 सेक्टर्स में बटा हुआ है। Nifty 50, निफ्टी इज डिवाइडेड इनटू 12 सेक्टर्स। ठीक है, नंबर वन देखते जाइएगा IT, नंबर टू फाइनेंशियल सर्विसेज, फिर निफ्टी जिसको आप बोलते हैं, नंबर थ्री इज कंज्यूमर गुड्स, सब पे नोट्स बना लेना काफी अच्छे से। नंबर फोर एंटरटेनमेंट एंड मीडिया, नंबर फाइव मेटल्स, नंबर सिक्स फार्मास्यूटिकल्स, नंबर सेवन टेलीकम्युनिकेशन। बीइंग अ ट्रेडर ये मुजवानी याद होना चाहिए आपको। ठीक है, नंबर एट सीमेंट। ठीक है, एंड इट्स प्रोडक्ट्स, जो भी सीमेंट है उसके प्रोडक्ट्स हैं। नंबर नाइन ऑटोमोबाइल्स, नंबर 10 पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स, निफ्टी केमिकल जिसको आप बोलते हैं। नंबर 11 एनर्जी, नंबर 12 अदर सर्विसेज। ठीक है, ये सारे 12 कंस्टिट्यूएंट से मिलके आपका जो है निफ्टी बना है। निफ्टी इज मेड बाय एडिंग दिस अक्रॉस द 12 सेक्टर्स, 12 सेक्टर्स को बना के निफ्टी बना है। ठीक है, और इसके अंदर जो स्टॉक्स हैं, इनके अंदर जो स्टॉक्स हैं,
ठीक है, वो उनका जो वेटेज है, वैल्यू ऑफ देयर वेटेज इज चेंजिंग, वो हमेशा चेंज करता रहता है। ये आपको हर महीने उसका जो डेटा है वो एनएससी की वेबसाइट पे आ जाता है। आप वेटेज ऑफ निफ्टी 50, वेटेज ऑफ बैंक निफ्टी सर्च करके वहां से उनका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं कि अभी किसका कितना परसेंट वेटेज है। बाकी मैं कल जब क्लास लूंगा तो मैं आपको उसमें बताऊंगा ही कि इसमें कैसे फिर फर्दर क्या क्या काम होता है। ठीक है, आपके अकाउंट में जो फंड्स है, ठीक है, उसको जो ट्रिगर मिलता है ना, मतलब जो प्रॉफिट होता है या जो लॉस होता है, वो इंडेक्स के टॉप 5 जो स्टॉक्स हैं उसके मूवमेंट से ही होता है। वो आपके डायरेक्शन में मूव करता है तो आपको प्रॉफिट होता है, वो आपके डायरेक्शन के अपोजिट मूव करता है तो आपको लॉस होता है। ठीक है, तो स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स स्पेसिफिक एवरी 5 स्टॉक आपको पता होना चाहिए, यू शुड नो अबाउट इट। अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको ये चीजें अपने दिमाग में बिठानी पड़ेगी। ठीक है, सेकंड जो है हमारे लिए है, सेकंड थिंग जो है, सेकंड इज बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी वेटेज जो है वो टाइम टू टाइम इंडेक्स का चेंज करता रहता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, बैंक निफ्टी क्या है, व्हाट इज बैंक निफ्टी? कंप्राइज्ड ऑफ मोस्ट लिक्विड एंड लार्ज कैपिटलाइज्ड इंडियन बैंकिंग स्टॉक्स, इंडियन बैंकिंग स्टॉक्स। बैंक निफ्टी क्या है? ऑब्वियसली इंडियन बैंकिंग स्टॉक्स जिनका लिक्विडिटी सबसे ज्यादा है, जिनका कैपिटल सबसे ज्यादा है, उनके ग्रुप ऑफ स्टॉक्स का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम लोग बैंक निफ्टी बोलते हैं। बैंक निफ्टी इंडिया का हॉट फेवरेट है, मतलब इंडिया के डेरिवेटिव मार्केट का फ्यूचर एंड ऑप्शन का हॉट फेवरेट है। इसने कितनों को करोड़पति बना दिया और कितनों को करोड़पति से रोडपति बना दिया। ठीक है, 10% लोग करोड़पति बने हैं, 90% लोग करोड़पति से रोडपति बने हैं, या जो रोड पे थे वो तो भाई पता नहीं कहाँ गए। ठीक है, बहुत पॉपुलर है अपने इंडिया में। इट इज द मोस्ट पॉपुलर इंडेक्स इन विच ट्रेडिंग इज डन, सेलिंग एंड बाइंग इज डन इन बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी लॉन्च कब हुआ था? 2003 में। ठीक है, टॉप इंडियन बैंकिंग स्टॉक्स का जो परफॉर्मेंस है, टॉप इंडियन बैंकिंग स्टॉक्स का जो परफॉर्मेंस है वो हम बैंक निफ्टी में मॉनिटर कर सकते हैं। ठीक है, इंडेक्स में इसके अंदर 12 बैंकिंग स्टॉक्स हैं, 12 बैंकिंग स्टॉक से मिलके आपको बैंक निफ्टी बना हुआ है, जिसमें मेजर बैंक्स जो हैं, ठीक है, नंबर 1 इज HDFC, जैसे मैं आपको पहले बता रहा था। नंबर 2 इज ICICI, नंबर 3 इज एक्सिस, नंबर 4 इज कोटक, नंबर 5 इज SBI। क्योंकि आप मैक्सिमम लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, तो इन पांचों का स्टॉक तो डेली देखो, कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ रेसिस्टेंस है, कहाँ वीकली ब्रेकआउट है, कहाँ मंथली ब्रेकआउट है, कहाँ क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। दिस यू शुड नो। ठीक है, दिस यू शुड क्लियरली नो। ठीक है, और हमारे यहाँ इंडिया में इंडेक्स मैनेजमेंट बड़ी आसान चीज है, हमारे यहाँ ये खूब होता है, हमारे यहाँ ये खूब होता है। ठीक है, इंडेक्स मैनेजमेंट खूब होता है। म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं, बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं, बिग मनी है, करोड़ एंड थाउजेंड सब करोड़ लेके बैठे हुए हैं। ठीक है, मार्केट गिर रहा है तो उसको खरीद लिया तो उठा दिया, उसको बेच दिया तो इंडेक्स मैनेजमेंट हमारे यहाँ खूब होता है। अभी तो इस साल तो लाग फ्रॉम नेक्स्ट लास्ट 8 मंथ्स इंडेक्स मैनेजमेंट तो इतना जबरदस्त तरीके से चल रहा है कि क्या बताऊं। ठीक है, जो भी कर रहा है, जहां भी कर रहा है, वो मतलब पैसे ऐसे छाप रहा है जैसे वो लक्ष्मी माता उसके घर पे आके बस गई हूँ, रच बस गई हूँ। ठीक है, जो वो चाहते हैं वो कर लेते हैं। पैसा है, पावर ऑफ मनी। अगर आपके पास 1,000 करोड़ है, आप बैंक निफ्टी में कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, आपके पास अगर 10,000 करोड़ है, तब आप बैंक निफ्टी को थोड़ा सा हिला सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास 10-10 हजार करोड़ वाले 50 लोग हैं, तब तो आप बैंक निफ्टी को जिधर से चाहे, जैसे चाहे मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यही दिक्कत है यहाँ फॉरेक्स में, किसी की मजाल है कि कोई किसी चीज किसी को मैनिपुलेट कर दे? भाई बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं वहां पे, कहाँ से लाएगा कोई उतना? पॉसिबल ही नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल।
इसीलिए कहा जाता है कि मैं धीरे धीरे आप सभी से यही गुजारिश करूंगा कि धीरे धीरे अपने आप को इतना बड़ा बना लो कि एक टाइम में यू आर गोइंग टू ट्रेड इन फॉरेक्स एंड क्रिप्टो। उससे सेफ कुछ नहीं है, एंड यू आर मेकिंग मनी इन डॉलर्स। और सारे कॉन्सेप्ट जो यहाँ आप सीखोगे, सीख रहे हो, जो आप जानते हो, वही आपको वहाँ अप्लाई करना है। वॉलेटिलिटी इज वेरी हाई, बस चीजें यही हैं। खैर, जब हम उसके बारे में पढ़ेंगे हम उसको भी जानेंगे। ठीक है। हमारे देश में कहा जाता है, एक चीज बता रहा हूँ, हंसना मत, ठीक है। स्टॉक मार्केट गैम्बल है। मैं अपने घर पे जब बोलता था ना कि मैं स्टॉक मार्केट में करियर बनाऊंगा, तो माय फादर यूज्ड टू टेल मी स्टॉक मार्केट इज अ गैम्बल, सट्टा बाजार। पागल हो क्या, यहाँ कौन करियर बनाता है? यहाँ क्या होता है? कुछ नहीं है। ठीक है, वो अलग बात है। नाउ आई चेंज हिज मेंटेलिटी, तो ही थिंक्स इट इन अ वेरी डिफरेंट मैनर। बट हमारे देश में कमोबस पूरे, लगभग सारे घरों का यही हाल है। स्टॉक मार्केट को वो गैम्बल सोचते हैं। ठीक है। दिमाग देखो आप, है ना। हमारे माँ बाप, हमारे पेरेंट्स अपना पैसा कमाते थे, कमा के लाया, सेविंग की, बैंक में रखा। ठीक है। बैंक, ध्यान से सुनना वट एवर आई एम टेलिंग। माई फादर, माई पेरेंट्स, योर पेरेंट्स, एनी वंस पेरेंट्स, दे अर्नड। अकॉर्डिंग टू देम स्टॉक मार्केट इज गैम्बल। ठीक है। मैं, आई एम नॉट पासिंग एनी कमेंट, जस्ट आई एम गिविंग माई लॉजिकल थॉट। स्टॉक मार्केट इज अ गैम्बल, ओके, चलो मान लिया, ओके, इट इज अ गैम्बल। वी कीप आवर सेविंग्स इन बैंक्स, हम अपनी सेविंग बैंक में रखते हैं। वी बाई LIC, लाइफ इंश्योरेंस खरीदते हैं। वी बाई म्यूचुअल फंड्स, ओके। वी बाई डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स, जहां जहां से सेविंग हो सकती है, आप पैसा देते हैं। अपने इंडिया में ट्रेडिंग कम्युनिटी में बड़ा फेमस एक कोट है, स्टॉक मार्केट इज गैम्बल एंड LIC इज द गैम्बलर। हमने LIC में पैसा जमा किया अपने लाइफ को इंश्योर करने के लिए। LIC क्या करता है? उस पैसे पे कहाँ, वो हवा में से पैसा थोड़ी पैदा कर रहा है यार। इट इज नॉट जनरेटिंग मनी बाय प्रिंटिंग इटसेल्फ। वो कहाँ से पैसा लेके आ रहा है? वो पैसा डालता है, फिर स्टॉक मार्केट में, वहां से पैसा निकालता है, तो आपको प्रीमियम देता है, आपको फिर आपके बेनिफिट्स देता है। आपको मुझ पे अगर यकीन नहीं हो रहा है तो गूगल कर लेना कभी, स्टॉक मार्केट में LIC का जो पैसा है वो कितना परसेंट इन्वेस्टेड है, आप देखना। LIC छोड़ो यार, आप बैंक में सेविंग डालते हो, वो बैंक कहाँ से उस पे पैसा करके आपको क्वार्टरली इंटरेस्ट पेमेंट करता है? कहाँ से ला रहा है? लोन से ला रहा है, मार्केट में लगा रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तभी तो वहां से पैसा आ रहा है। ठीक है, इसीलिए ये कोट बड़ा फेमस है, स्टॉक मार्केट इज गैम्बल एंड LIC इज द बिगेस्ट गैम्बलर। ठीक है। हम अपना पैसा जमा करते हैं इस उम्मीद में कि हाँ LIC है, बचा लेगी हमें। ठीक है, हम, हमें कुछ हो गया तो हमारा जो पैसा है वो LIC से हमें मिलेगा, और LIC उस पर पैसा कहाँ से कमा रही है? उसको डाल देती है स्टॉक में। बाई कर लेते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, RBI की सिक्योरिटीज, अलग अलग सिक्योरिटीज, अलग अलग चीजें, एंड वहां से दे मेक इंटरेस्ट ऑन इट, है ना। तो घुमा फिरा के कान सीधा पकड़ो या उल्टा पकड़ो, बात बराबरी पड़ती है। इट इज लाइक दैट ओनली। ठीक है। अब कल मैं आपको इसके वेटेज के बारे में बताऊंगा। आई विल टेल यू अबाउट इट्स वेटेज, किसका कितना वेटेज है, कैसे इसको देखते हैं, क्या चीजें होती हैं। आई विल टॉक अबाउट इट टुमारो। मैं इसके बारे में आपसे फिर अब कल बात करूंगा। ठीक है। तो आई होप टुडे सेशन वाज नॉलेजेबल, बहुत सारी चीजें आपको अच्छे से सीखने को मिली, आपने सीखा। ठीक है। अगेन टुमारो सेम टाइम वी विल टेक द क्लास। जिन लोगों ने सैलरी वाला फॉर्म अभी तक नहीं भरा है उसको फिल कर दीजिए। ठीक है। बाकी आपका जॉब बॉन्ड, सॉफ्ट कॉपी, अपॉइंटमेंट लेटर, सॉफ्ट कॉपी, आपकी जो ट्रेडर योद्धा के डोमेन से जो ईमेल आईडी बननी है, ये तीन चीजें एनी हाउ आई विल कंप्लीट इट बाय नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक के संडे आने से पहले आई विल एनी हाउ कंप्लीट इट, हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। रेस्ट थिंग्स, नाउ आई विल फ्रेशन अप, आफ्टर दैट विल फिनिश सम वर्क, एंड उसके बाद फिर आई विल गो फॉर लीव फॉर द हॉस्पिटल, एंड फिर आई विल स्पेंड बाय नाइट पीसफुली। नाउ आई विल हैव नो गिल्ट कि नहीं यार, अब मैंने आज भी क्लास नहीं ले पाया, आज भी लोग वेट करते रह गए होंगे। नाउ आई विल बी वेरी पीसफुल। ओके। जस्ट वन रिक्वेस्ट, प्लीज ब्लेस, प्लीज डू द प्रेयर। आपके प्रेयर, आप 100 लोग प्रेयर करेंगे, मैं अकेला कर रहा हूँ, 100 लोग और थोड़ा सा प्रे कर देंगे तो शायद थोड़ी, थोड़ा जल्दी मेरी मदर ठीक होके वापस आ जाएंगी, है ना। आपकी माँ मेरी माँ है, मेरी माँ आपकी माँ है। इट इज लाइक दैट, सो वी ऑल आर लाइक अ फैमिली एंड वी हैव टू बी लाइक अ फैमिली। कोई क्वेरी वगैरह नहीं ले रहा हूँ, कुछ भी क्वेरी होगी भाई टाइम का शेड्यूल फॉलो कीजिए प्लीज। आपकी क्वेरी टाइम 4 से 7 है, प्लीज इसी टाइम में फॉलो किया कीजिए, वरना टीम आपको म्यूट कर देगी, फिर मेरे को आप मत बोलो। ठीक है। 4 से 7 के बीच में आपको जो पूछना है उनसे जैसे पूछना है पूछ लो, नहीं तो फिर अगले दिन का वेट करो। मेल आप कभी भी कर सकते हो,
ठीक है, कॉलिंग एंड टेलीग्राम पे मैसेजिंग आप उनको 4 से 7 कीजिए। बाकी अगर आपको और कुछ बताना है, मेरे से बात करनी है, मैं अगर अवेलेबल नहीं हो पा रहा हूँ, अपनी क्वेरी रिकॉर्ड करके भेज दीजिए, नीचे लिख दीजिए रेफरेंस टू सर, वो मेरे को फॉरवर्ड कर देंगे, मैं उसको सुन के आपको रिप्लाई कर दूंगा। अगर बहुत अर्जेंट होगा तो आई विल कॉल यू बैक। ठीक है, और जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो मैं वीकेंड में बैठ के आराम से फिर आपसे फर्दर बात करूंगा, अभी बात करूंगा तो बहुत डिले हो जाएगा। ओके, सो लेट्स इन द क्लास एंड अगेन आई विल सी यू ऑल टुमारो एट द सेम टाइम। ठीक है, अगर कैंसिल होने का कोई चांस नहीं है, दिस इज द बेस्ट टाइम, आई विल बी इजिली बी एबल टू मैनेज इट। तो सेम टाइम पे कल भी हम लोग इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो आई होप यू ऑल लर्नड वेल, नोट्स बना लेना अच्छे से, एंड नाउ द नॉलेज पार्ट इज गोइंग टू गो इन अ वेरी बिग मैनर एंड वी आर गोइंग टू लर्न इट इन द बेस्ट मैनर पॉसिबल। ठीक है, चलिए, प्लीज टेक केयर, हैव अ नाइस डे, enjoy your evening and keep learning. Thank you.